Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel, A Young Homeopath. Hope you all are doing well. So as you all know, in this video, we are going to know about Hyoscyamus niger, which is very much important medicine in our materia medica for particularly delirium, or we can say mental diseases, right? So this particular medicine is very important, and also it make a trio, or it is one of the part of the trio of delirium. So the other members of this trio is stramonium and belladonna, right? So always sometimes. Arising in your examination that what is the trio of delirium and what are the members of trio of delirium, right? And the second one, second question, or we can say the short note comes in the examination for the Hyoscyamus niger, right? Its particular symptom, which is the mind symptoms, particularly delirium and conversion. Sometimes it's the fever is also asked in examination, and also there is a one question that comparison or contrast between belladonna, stramonium, and Hyoscyamus, or belladonna or Hyoscyamus, or belladonna or stramonium, right? So in this particular video, we are going to know about Hyoscyamus niger medicine, right? For the other topics like contrast and comparison between two drugs, right? For that particular thing, I will make another video if you went. So if you need that video, if you went to know about all the three other medicines, you can drop down the comment, right? And also you can DM me on my IG account. And also second thing, that if you went handwritten notes of this particular medicine or any other medicine or any other topic from the organon of medicine and also from the pharmacy, homeopathic pharmacy, then you can check the description box below. There is a one link for my IG account, then you can DM me there, and also you can comment below from this particular video. So I will share my handwritten notes, right, with you all guys. Okay, so let's get started. So सबसे पहले हम शुरू करते हैं with the basic data of Hyoscyamus niger medicine. So first there is a common name. Its common name is a black ben, right? And the second thing, which is prover name. So its prover name is this particular medicine is proved by Dr. Hahnemann. Then family is Solanaceae, and all the other two medicine from the trio of delirium, which is stramonium and belladonna, is also from same family, which is the Solanaceae, right? And the second thing, duration of action. So this particular medicine is act between the 6 and 14 days of from the administration, right? And the part use means we can make this particular medicine from the whole plant of Hyoscyamus, and we can potentize that particular part and then make other potencies, right? And the second very most important thing, which is a constitution, right? So constitution, the first one, which is a miasm. So it particularly from the sora, and also other medicines, which is stramonium and belladonna, is also the miasm is a sora, because this all the three medicines are act on the mind, and also they act on the nerves. So we can say that their miasms are the sora. And the second thing, which is a temperament. So there is a particularly nervous, sanguine, hysteric and irritable temperament, right? So अब हम temperament से क्या समझते हैं कि जो patient है वो कैसा होगा. So जो पेशेंट है वो नर्वस होगा, राइट? ये जो सारी तीनों मेडिसिन हैं उसके अंदर नर्वस टेम्परामेंट इज अ बेसिक थिंग. इवन वो पर्टिकुलरली अगर हम सोलेनियसी फैमिली की बात करें तो उसमें भी पर्टिकुलरली नर्वस टेम्परामेंट इज बेसिक थिंग. देन सेंग्वाइन एंड हिस्टेरिकल टेम्परामेंट एंड इरिटेबल. हिस्टेरिक दैट मीन्स कि यहाँ पर जो माइंड है, जो थिंकिंग है, वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, राइट? सो इसका टेम्परामेंट इस तरीके का है. देन द थर्मल रिलेशन. सो द पेशेंट इज चिली एंड द मेडिसिन इज ऑल्सो चिली, राइट? ओके, सो नाउ द शीट ऑफ एक्शन मीन्स कि ये मेडिसिन पर्टिकुलरली कौन कौन से ऑर्गन्स के ऊपर, कौन कौन से सिस्टम्स के ऊपर, कौन कौन से सेल्स, टिश्यूज के ऊपर काम करती है, राइट? सो द पर्टिकुलरली देयर इज अ नर्व्स, राइट? पर्टिकुलरली द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड ऑल्सो सेंसोरियम मीन्स दैट हाउ वी बिहेव, राइट? सो हम किस तरीके का बिहेव करेंगे, वो जो हमारी पर्टिकुलरली एक वन ऑफ द पार्ट ऑफ अवर ब्रेन जो कि ये सारी चीज़ों को हैंडल करता है, उसे हम कहते हैं सेंसोरियम. सो उसके ऊपर ये पर्टिकुलरली इफेक्ट करता है, राइट? सेकंड थिंग, विच इज अ म्यूकस मेम्ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंसोरियम, स्किन एंड मसल्स. सो स्किन के ऊपर भी इसका इफेक्ट है, बिकॉज कि जब हम आगे देखेंगे कि इसका डेलिरियम कैसा है, राइट? सो उस टाइम प्लस इसके जो कन्वर्जन्स हैं उसके अंदर पर्टिकुलरली हमें देखने मिलेगा कि इसका जो फेस है वो बहुत ज़्यादा रेड हो जाता है, राइट? सो इसीलिए इसका हमने एक शीट ऑफ एक्शन एज अ स्किन भी लिखा हुआ है. देन मसल्स, बिकॉज देयर इज अ कन्वर्जन्स. देन देयर इज अ आइज, बिकॉज कि ड्यूरिंग कन्वर्जन्स देयर इज अ पर्टिकुलरली प्यूपिलरी रिएक्शंस इन द आइज, राइट? एंड द ब्लड एंड फेस, राइट? सो ये सारी चीज़ें हुई अबाउट द शीट ऑफ एक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर मेडिसिन. देन अब हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी, हाउ इट रिएक्ट, how it acts. Okay, so the first one, which is that it irritate a cerebral activity which is non-inflammatory,
रिमेंबर हियर कि ये सेरेब्रल जो सारी एक्टिविटीज़ है, जो हमारे माइंड की एक्टिविटीज़ है, जो हमारी नर्व्स की एक्टिविटीज़ है, उन्हें इरिटेट करता है बट बाय द नॉन इन्फ्लामेटरी थिंग्स, राइट। जबकि जो बेलाडोना एंड स्ट्रेमोनियम जो है वो स्ट्रेमोनियम में भी कम है, लेकिन बेलाडोना में बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेटरी चेंजेस आते हैं और बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पर इरिटेशन होता है इन द नर्व्स, राइट। सो ये एक डिफरेंशियल पॉइंट है बिटवीन द बेलाडोना एंड द हायोसाइनस की हायोसाइनस के अंदर नॉन इन्फ्लामेटरी चेंजेस आते हैं, जबकि जो बेलाडोना है वहाँ पर इन्फ्लामेशन इज वेरी वेरी मार्क, राइट। नाउ सेकंड थिंग विच कॉज इट, अब यहाँ पर इरिटेशन हुआ इन द सेरेब्रल एक्टिविटी, अब क्या होगा, सो देयर इज अ डेलीरियम, इट कॉजेज अ डेलीरियम, हिस्टेरिया एंड ट्रीमर्स, राइट। सो ये तीन जो पर्टिकुलर डिजीजेस हैं वो क्यों कॉज होती है, बिकॉज इट इरिटेट द सेरेब्रल एक्टिविटी। नाउ सेकंड वन विच इज अ सेंसोरियम, सो जब ये सेंसोरियम को इरिटेट करता है, अगेन देयर इज अ इरिटेबिलिटी ऑफ द सेंसोरियम, अब ये सेंसोरियम को इरिटेट करता है तो क्या होगा, पेशेंट जो है उसे हेल्यूसिनेशन होगा, पेशेंट जो है उसे इल्यूजन होगा, राइट। एंड द मेनिया, मेनिया जो है इसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी, प्लस अगर हमें हायोसाइनस को प्रिस्क्राइब करना है तब भी, ओके। नाउ अब इस पॉइंट पर देयर इज वन थिंग कि जो हायोसाइनस है उसका अगर हम डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर देखें तो जो हायोसाइनस है उसे पहले भी मीन्स कि बहुत सालों पहले भी जब होम्योपैथी की खोज नहीं हुई थी, उससे पहले भी उसे यूज़ करते थे इन द एसाइलम, राइट। सो एसाइलम में इसका यूज़ कैसे करते थे कि जो पेशेंट है, ये सेकंड थिंग कि इसका जो यूज़ है वो एक्यूटली होता है, इसका जो एक्शन है वो पूरा एक्यूट सिस्टम्स के ऊपर है या फिर तो एक्यूट डिजीजेस के ऊपर है। सो असाइलम में जब कोई पेशेंट को एक्यूट अटैक्स आते थे, राइट, तब उन्हें इसी ये जो हायोसाइनस नाइगर का जो प्लांट वहाँ पर रखते थे ये लोग, और उसका जो रूट होता था उसका उसे क्रश करके उसका जूस बनाकर उसी वक्त उस पेशेंट को पिला देते, जिससे कि वो जो पेशेंट है उसके जो सारी इरिटेबिलिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाती थी, और अगर किसी पेशेंट को कन्वर्जन्स भी होते थे तब भी वो इसी मेथड से जो पेशेंट है उसे एक पर्टिकुलर टाइम के लिए उसकी जो सारी एक्टिविटीज़ हैं उसे डिमिनिश कर देते थे, राइट। ओके, सो सेकंड थिंग, अगर हम इसे हायोसाइनस को कंपेयर करें विद द एलोपैथिक ड्रग्स, तो जो एलोपैथिक के अंदर एंटी डिप्रेसेंट्स आती हैं, राइट, जो कि हमारे ब्रेन की एक्टिविटी को, जो कि हमारे नर्व्स की एक्टिविटी को डिप्रेस कर देती है फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सेम वे जो हमारा हायोसाइनस है उसका एक्शन भी यही है कि वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमारी जो एक्टिविटी है, इरिटेबिलिटी होती है नर्व्स के अंदर, पर्टिकुलरली सेरेब्रल एरियाज के अंदर उसे डिमिनिश कर देती है, राइट। लेकिन अगर हम इसे होम्योपैथिकली प्रिस्क्राइब करते हैं तो जो पेशेंट है वो क्योर हो सकता है, राइट। ओके, सो अब अगर हम सेंसोरियम की बात करें, ओके, तो सेंसोरियम जो मैं जैसे कि मैंने आपको आगे कहा कि सेंसोरियम एक ऐसा पार्ट है हमारे ब्रेन का जो कि हमारे बिहेवियर, हमारा जो बिहेवियर कैसा है, हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है, राइट। सो अगर उसकी इरिटेबिलिटी हो जाती है तो क्या होगा, इन शॉर्ट की जो पेशेंट है उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, राइट। अब बिहेवियर चेंज होता है उसे हम कैसे पहचानते हैं, राइट। तो उसे हम इस तरीके से पहचानते हैं कि उस पर्टिकुलर पर्सन के अंदर कोई मेनिया होता है। मेनिया जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए कि मेनिया के अंदर बहुत सारे टाइप के मेनिया होते हैं। सो मेनिया के अंदर जो पेशेंट है वो एबनॉर्मली बिहेव करता है, राइट। एबनॉर्मली के अंदर सब कुछ आ रहा है, इधर इट इज अ वायलेंट मेनिया, इधर इट इज अ लेसिडियस मेनिया, इधर इट इज अ एंगर मेनिया, राइट। सो इस तरीके से कोई भी एबनॉर्मली जो पेशेंट है वो बिहेव करता है, राइट, फिजिकली मेंटली अगर वो बिहेव करता है एबनॉर्मली तो हम उसे कहते हैं मेनिया। देन सेकंड थिंग यहाँ पर है हेल्यूसिनेशन। सो हेल्यूसिनेशन इन द सेंस कि जो कोई पेशेंट होगा उसे पर्टिकुलरली किसी भी चीज़ को लेकर उसका एक धारणा होगी, राइट, और वो उसी चीज़ को मानेगा। अगर इन द सेंस कि जो कोई पेशेंट है उसे कोई ऐसा पर्सन दिखेगा जो कि वहाँ पर नहीं है, लेकिन वो उस चीज़ को मानेगा और वो उस चीज़ पर अपना पूरा फोकस करेगा कि वहाँ पर वो इंसान है, राइट। सो ये सारी चीज़ें भी हम आगे देखेंगे एक एक करके, जो कि ये सारी चीज़ें आती है डेलीरियम के अंदर, राइट। सो पर्टिकुलरली जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि हम हायोसाइनस के पर्टिकुलर्स के अंदर उसका डेलीरियम एंड उसका कन्वर्जन देखेंगे, राइट। ओके, नाउ द सेकंड पैथोफिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ हायोसाइनस विच इज मसल्स। मसल्स के अंदर क्या होता है, टोनिक एंड क्लोनिक कन्वर्जन्स आते हैं, और वहाँ पर जो मसल्स की एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। देन म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर अगेन इरिटेशन होता है एंड इट कॉजेज अ डायरिया, राइट। एंड देन स्किन के अंदर इरिटेशन होता है और स्किन की डिजीजेस जो सारी है वो कॉज हो सकती है, राइट, पर्टिकुलरली डर्मेटाइटिस, राइट। नाउ द सेकंड वन विच इज एलिमेंट्स फ्रॉम, राइट। सो कौन कौन से कॉजेज रहेंगे, सो अनफॉर्चुनेट लव। अब जो पेशेंट होगा वो पैदाइशी तो ऐसा नहीं होगा, राइट। वो जो पेशेंट होगा उसे कुछ ना कुछ हुआ होगा, राइट। और सेकेंड थिंग कि अगर हम माइंड की बात करते हैं, अगर हम नर्व्स की बात करते हैं, तो वहाँ पर पर्टिकुलरली एंड सेकेंड थिंग हमने यहाँ पर कह दिया कि ये नॉन इन्फ्लामेटरी है। दैट मीन्स कि हम इतना तो सोच सकते हैं कि अगर कोई भी चीज़ हो रही है, कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उसका कोई भी रिलेशन इंजरी के साथ, फिजिकल इंजरी के साथ नहीं होगा, राइट। फिजिकली यहाँ पर पेशेंट को कुछ एक्सीडेंट वगैरह, इंजरी वगैरह नहीं हुई होगी जिससे कि उसका नर्व्स डैमेज हुई होगी, राइट। लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलरली अगर माइंड के लेवल पर हम सोचें तो कोई भी इमोशन उसके हैं वो सप्रेस हुए होंगे, कोई भी इमोशंस के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी
आई होगी, राइट, उसकी वजह से ही पेशेंट को ऐसे सिम्टम्स आते हैं। और मोस्ट ऑफली जो सारे हमारे मेंटल सिम्टम्स वाले पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर कोई ना कोई इमोशन जो है वो सप्रेस हुआ होता है, या फिर तो इमोशन जो है वो उसका कुछ भी एबनॉर्मलिटीज आई होती है, राइट। सो यहाँ पर पर्टिकुलरली अगर हायोसाइनस की हम बात करें तो यहाँ पर जो हमारा पेशेंट है उसे जो अनफॉर्चुनेट लव है उसका, राइट, उसका जो लव है या फिर तो उसकी कोई भी ऐसी उसकी फीलिंग्स जो कि वो बाहर नहीं ला रहा, राइट, वो बाहर नहीं दिखा रहा, राइट, सो उसकी वजह से होगा। देन रेग 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 दैट मीन्स कि एक्सेसिव एंगर, बहुत ज़्यादा पेशेंट के अंदर एंगर है लेकिन वो भी बाहर नहीं आ रहा, राइट, बहुत ज़्यादा एंगर है, इतना ज़्यादा एंगर है कि जिसकी वजह से पेशेंट सारी चीज़ें तोड़ने लगता है, वो अपना एंगर दूसरों के ऊपर निकाल रहा है, राइट। सो वो इस तरीके का एंगर होगा पेशेंट का, उसकी वजह से उसे सारे सिम्टम्स आएंगे, सिम्टम्स इन द सेंस कि डेलीरियम एंड कन्वर्जन, राइट। सेकेंड वन है जेलसी, किसी जेलसी की वजह से भी सारे सिम्टम्स आ सकते हैं, फ्राइड, फियर एंड इंटेस्टिनल वॉर्म्स। इंटेस्टिनल वॉर्म्स पर्टिकुलरली हम जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके अंदर कंसीडर करेंगे, राइट। नाउ अब हम इसके पर्टिकुलर जो सिम्टम्स हैं वो देखेंगे। सो उसके अंदर मैंने जैसे आपको सबसे पहले कहा कि हम डेलीरियम एंड कन्वर्जन के बारे में बात करेंगे, राइट। सो फर्स्ट देयर इज अ माइंड, सो क्यों होगा, बिकॉज इंक्रीज मेंटल एक्टिविटी की वजह से होगा। सो जैसे कि हमने आगे जो सारे एलिमेंट्स फॉर्म थे उनके उसके अंदर हमने देखा कि जो सारी चीज़ें हैं उसके अंदर लास्टली क्या होता है कि हमारी जो मेंटल एक्टिविटी है, जो हमारी ब्रेन की एक्टिविटी है वो ज़्यादा हो जाती है, राइट। अनफॉर्चुनेट लव है, रेग है, जेलेसी है, फ्राइड है, इन सारी चीज़ों के अंदर हमारी मेंटल एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, कहीं पर भी हमारी मेंटल एक्टिविटी जो है वो डिप्रेस नहीं हो रही है, राइट। ओके, नाउ पेशेंट इज वेरी रेस्टलेस, राइट, एंड जंप फ्रॉम बेड टू बेड, राइट। अब जो पेशेंट है उसका बिहेवियर बिल्कुल अलग हो जाएगा बिकॉज इट एक्ट ऑन द सेंसोरियम, राइट। सो क्या होगा कि पेशेंट बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है एंड वो वन बेड टू अनदर बेड या फिर तो वन प्लेस टू अनदर प्लेस वो जंप करेगा, वो चलेगा नहीं, जंप करेगा, राइट। देन सेकेंड थिंग, ट्राइज टू एस्केप, ये भी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इन द हायोसाइनस कि जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होगा और इसकी वजह से जो पेशेंट है वो भागने की कोशिश करेगा, राइट। वो किसी भी जगह पर है वो वहाँ से निकलने की कोशिश करेगा, उसे सब लोगों से दूर जाना है, भले ही वो उसके बहुत क्लोज रिलेटिव्स हैं लेकिन उनसे सबसे दूर जाना है, राइट। सो वो पेशेंट जो है वो भागने की कोशिश करेगा, हर एक चीज़ से भागने की कोशिश करेगा, राइट। नाउ सेकेंड थिंग द डेलीरियम, अब हम पर्टिकुलरली डेलीरियम की बात करेंगे। सो थिंक दैट ही इज ऑन रॉन्ग प्लेस एंड ट्राइज टू एस्केप कॉन्स्टेंटली स्पिट ऑफ बेड क्लोथ्स, राइट। अब जो पेशेंट है उसे ऐसा लगेगा कि मैं गलत जगह पर हूँ, राइट, भले ही वो हॉस्पिटल में है उसे ऐसा लगेगा कि मैं गलत जगह पर हूँ और मुझे यहाँ से भागना है, मुझे यहाँ से कहीं दूर जाना है, राइट। सो ये एक चीज़ होगी। देन वो कॉन्स्टेंटली जो बेड के क्लोथ्स हैं, राइट, जो बेड है जिस बेड के ऊपर हमने पेशेंट को लिटाया है वो वहाँ के जो क्लोथ्स है उसे बार बार खींचेगा, राइट, उसे बार बार खींचने की कोशिश करेगा और बार बार खींचेगा भी उन सारे क्लोथ्स को। देन प्ले विथ देन हैंड्स ऑन हिज genitals, he put hands on his genitals, tries to be uncovered, ये एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट थिंग है इन द हायोसाइनस बिकॉज कि हायोसाइनस के अंदर लेसीडियस मीनिया होता है, राइट। सो लेसीडियस इटसेल्फ इसका जो वर्ड का मीनिंग है वो है शेमलेस, राइट। जो पर्सन है वो शेमलेस होगा, वो क्या करेगा तो वो अपने अपने जो खुद के क्लोथ्स है वो उतारने की कोशिश करेगा, इवन तो उतार भी देगा और वो बार बार अपने जबर करने की कोशिश करेगा। देन पुट हैंड्स ऑन हिज genitals एंड प्ले विथ सेम, राइट। मैंने जैसे आपको कहा कि जो पेशेंट है वो शेमलेस है, देन आउट ऑफ हिज सेंसेस, जो पेशेंट है वो बिल्कुल भी अपने सेंसेस में नहीं है, वो ये जानबूझकर नहीं कर रहा है लेकिन उसके बिकॉज कि उसके सेरेब्रम में इतनी ज़्यादा इरिटेबिलिटी है कि वो ये सारी चीज़ें करवा रहा है, राइट। देन जेलेसी एंड सस्पिशन, अब जो जेलेसी एंड सस्पिशन है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है इन दिस पर्टिकुलर मेडिसिन। सो फियर ऑफ बीइंग पॉइजन, जो पेशेंट है वो उसको कोई भी इंसान कोई भी खाने की चीज़, कुछ भी पीने की चीज़, कुछ भी पहनने की चीज़ या फिर तो कोई भी चीज़ कोई अदर पर्सन हमारे पेशेंट को ऑफर करेगा तो वो चीज़ वो नहीं लेगा, राइट, बिकॉज कि उसे ऐसा सस्पिशन है, राइट, उसे इस तरीके का डर है, राइट, कि कोई उससे पॉइजन दे देगा, कोई उसे बेच देगा, फियर ऑफ बीइंग सोल्ड, देन फियर ऑफ बीइंग बीटर्ड, देन फियर ऑफ इंजर्ड, राइट, कोई अदर पर्सन उसे इंजरी कर देगा, ऐसा भी ऊपर हमारे पेशेंट को फेयर होगा। देन सस्पिशन टू एनीथिंग दैट ऑफर्ड, राइट। सो जो पेशेंट है वो किसी के पास से भी कोई भी चीज़ नहीं लेगा। देन लेसीडियसपेनिया, सो विल नॉट बी कवर्ड, kicks out clothes, expose the person, sing obscene songs and lies completely naked on the bed. सो ये सारी चीज़ें हमने आगे भी डिस्कस की कि जो पेशेंट है वो अपने क्लोथ्स उतारने की कोशिश करेगा, वो अपने क्लोथ्स उतार भी देगा, प्लस वो कुछ भी गाने गाएगा, वो वन बेड टू अनदर बेड के ऊपर जंप करेगा, राइट, बहुत ज़्यादा शेमलेस चीज़ें करेगा वो, राइट, एंड ही लाइज कम्प्लीटली नेकेड ऑन द बेड, राइट।
देन कन्वर्जन, अगर हम कन्वर्जन की बात करें, सो एवरी सिंगल मसल ट्विचेस फ्रॉम हेड टू टो, राइट। बॉडी का हर एक मसल वहाँ पर उसके अंदर कन्वर्जन आपको देखने को मिलेगा, राइट, फ्रॉम हेड टू टो। एंड टॉनिक एंड क्लॉनिक कन्वर्जन होंगे मसल्स के अंदर। फेस इज डस्की रेड एंड ब्लोटेड। अब फेस जो है, मैंने आपको आगे ही कहा कि स्किन को हमने यहाँ पर क्यों कंसीडर किया है, बिकॉज कि उसका जो फेस है वो डस्की रेड होगा, राइट, पूरा रेड नहीं होगा लेकिन डस्की रेड होगा। अगर हम अभी की बात, जो पेशेंट है, राइट, वो उसका जो फेस है वो ब्लोटेड लगेगा, राइट, ब्लोटेड इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा उसका फेस और वो डस्की रेड लगेगा। देन लो मटरिंग टॉक अबाउट बिजनेस एंड इमेजिनरी थिंग्स, राइट। अब जो पेशेंट है वो डेलीरियम के स्टेट के अंदर वो लो मटरिंग धीरे धीरे कुछ कुछ बोलता होगा, आपको ऐसा लगेगा, राइट। एंड वो पर्टिकुलरली किन चीज़ों के बारे में बोलेगा इन द डेलीरियम स्टेट। सो वो बिजनेस और इमेजिनरी थिंग्स के बारे में बातें करेगा। इमेजिनरी थिंग्स इन द सेंस कि जैसे मैंने आपको आगे समझाया, हेल्यूसिनेशन में कि उसे लगेगा कि कोई पर्सन वहाँ पर खड़ा है लेकिन पर्टिकुलरली वो पर्सन वहाँ पर नहीं होता। या फिर तो वो कोई भी चीज़ बताएगा कि यहाँ पर ये चीज़ पड़ी हुई है, राइट, लेकिन वहाँ पर वो चीज़ होगी नहीं। इन रियलिटी वो चीज़ वहाँ पर नहीं होगी, वो पर्सन वहाँ पर नहीं होगा, लेकिन पेशेंट को ऐसा दिखेगा और पेशेंट की ऐसी पर्टिकुलरली एक धारणा होगी कि नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है, राइट। देन एक स्टूपर का स्टेट भी आता है इन कन्वर्जन, राइट। सो द पेशेंट इज अनकॉन्शियस एंड डजंट रिप्लाई द क्वेश्चन, राइट। अब जो रिमेंबर हियर कि यहाँ पर जो कन्वर्जन है वो अनकॉन्शियस है, राइट, जबकि नक्सवामिका के अंदर जो कन्वर्जन होते हैं वो कॉन्शियस स्टेट में होते हैं, राइट। सो पेशेंट इज अनकॉन्शियस एंड वो हम कुछ भी उससे क्वेश्चन करेंगे तो वो रिप्लाई नहीं देगा। देन डजंट रिकॉग्नाइज एनी वन एंड सी पर्सन वो इज नॉट प्रेजेंट, राइट। वो किसी को रिकॉग्नाइज, वो अपने जो क्लोज रिलेटिव्स होंगे उसे भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। देन अब एडिशनली अगर हम कुछ चीज़ों, कुछ और सिम्टम्स के बारे में बात करें, तो जैसे कि मैंने आपको आगे कहा कि फीवर इसका एक इंपॉर्टेंट रहता है। देन सेकंड थिंग, कफ इसका इंपॉर्टेंट रहता है, राइट, एंड यूरिन। ओके, सो पहले हम कफ के बारे में बात करेंगे। सो कफ इज वेरी ड्राई स्पास्मोडिक कफ स्पेशली एट नाइट, देन एग्रावेट एट नाइट लेइंग डाउन एंड एमेलियोरेट बाय सिटिंग अप। ओके, देन यूरिन इसका कैसा होगा? सो पैरालिसिस ऑफ द ब्लैडर एंड आफ्टर लेबर। ओके, पैरालिसिस से एक और चीज़ याद है कि यहाँ पर जब कन्वर्जन होगा तब जो पेशेंट है उसका हर एक मसल टोनिक एंड क्लोनिक वहाँ पर कन्वर्जन होगा। उसके बाद अगर उसे बहुत ज़्यादा कन्वर्जन आएंगे तो उसको पैरालिसिस भी हो सकता है। ओके, देन यहाँ पर अब यूरिन की हम पर्टिकुलर बात करें, सो देयर इज अ पैरालिसिस ऑफ ब्लैडर। अब ब्लैडर के ऊपर पैरालिसिस होगा तो क्या होगा? रिटेंशन ऑफ यूरिन होगा, राइट, एंड इन कंटिन्यूएशन ऑफ द यूरिन, राइट, एंड नो डिजायर फॉर द यूरिनेट, बिकॉज कि वहाँ पर जो ब्लैडर है वही उसका ही पैरालिसिस हो गया है, राइट। सो ये सारी चीज़ें, ये सारे सिम्टम्स आएंगे। देन टाइफॉइड और टाइफॉइड फीवर, और उसके अंदर भी पर्टिकुलरली एक टंग का हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है कि हाइपोथाइमस की टंग कैसी होती है, राइट। सो टंग इज ड्राई ब्राउन क्रैक एंड वाइट पैचेज ऑन द टंग लुक लाइक बर्न लेदर। तो ये बर्न लेदर जो है वो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है इन द हाइपोथाइमस, जबकि उसकी जो टंग है वो ड्राई होगी, ब्राउन होगी, और जो लेदर है उसे अगर हम जला दें, उसे अगर हम बर्न कर दें तो जिस तरीके का वो दिखेगा उसी तरीके की जो पेशेंट है उसकी जो टंग है वो वैसे दिखेगी। देन पैरालाइज टंग इज ऑल्सो पैरालाइज एंड डिफिकल्ट इन स्पीच एंड ब्रीथ जो है वो पुट्रीड होगी, मीन्स कि जो माउथ के अंदर से जो स्मेल आ रही होगी वो पुट्रीड स्मेल होगी, ऑफेंसिव स्मेल होगी, और बैड बैड टेस्ट इन द माउथ, राइट। ये सारी चीज़ें होती है इन पर्टिकुलरली अगर पेशेंट को फीवर आता है तो। देन जनरल मोडालिटीज़ के अंदर क्या है? एग्रावेशन ड्यूरिंग मेंसेस, एट नाइट, जेलसी, अनहैप्पी लव, मेंटल एक्सर्शन, लेइंग डाउन, टच, कोल्ड एयर, राइट। सो ये सारी चीज़ होगी अबाउट द एग्रावेशन। देन एमेलियोरेशन के अंदर है वॉकिंग, सिटिंग, मोशन, वार्म एंड स्टूपिंग। Okay, then relationship with remedies. So it is follows well with belladonna, phosphorus, and nux vomica and opium, where it is antidoted by vinegar, belladonna, stramonium, and china. Okay, so ये सारी चीज़ें हो गई about Alzheimer's Niger medicine. So if you like this video, then please like, comment, share, and subscribe to my channel. And also, if you want any video on the specific topic, you can tell me in the comment section, as well as you can DM me on my IG account. Link is in the description box. Thank you so much for watching.